آج ہم گفتگو کا آغاز جو کریں گے وہ سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے, حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, اس حوالے سے تاج صاحب فلمیں ہیں, وہ بتائیں گے کہ اس ساری صورتحال میں کیا بہتری کی امید رکھی جا سکتی. محترم جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب. شکریہ بہت بہت. میں اس وقت یہاں تھر پارکر موجود ہوں اور بدین اور تھر پارکر ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ پرابلمس ہیں. جو اوپر کے اضلاع ہیں ان میں تو پانی جو ہے اس کی خبریں آتی رہی. جس طریقے سے فلڈ پروٹیکشن بند جو ہے وہ اس کے اندر شگاف پڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن چونکہ بدین اور تھر میں پانی آنے کا خطرہ تھا کہ اگر ایل بی او ڈی میں کوئی آتا ہے بریچ تو اس سے پہلے بھی ہم 2010 میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا یہاں پہ تباہی آئی تھی. تو اس لیے ذرا اس کو پہلے سے تیاری کرنے کے لیے میں یہاں سے موجود ہوں. ہے کہ اس وقت جو فلڈ ہے اس کی نوعیت 2010 کے فلڈ سے مختلف ہے. 2010 میں دریا میں پانی تھا, دریائے سندھ کے اندر, جس نے کہ بند توڑے تھے اور مختلف علاقوں میں پھیل گیا تھا. اس وقت یہ جو غیر معمولی بارش ہے تقریباً کوئی 4 گنی 5 گنی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی جو قدرتی گزرگاہیں تھیں ان کے اندر رکاوٹیں آ گئی. فلڈ پروٹیکشن بند وہ بھی ایک رکاوٹ ہے جو بلوچستان کے پانیوں کو, ان کا جو قدرتی راستہ ہے وہ نائے کے ذریعے آتے تھے, پہاڑی جو نالے ہیں ان کے ذریعے آتے تھے, وہ روک رہا ہے. رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جو ہے وہ بھی دریا اور پہاڑوں کے بیچ میں ایک اور رکاوٹ بنی ہے. اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ دریا میں جانے میں قدرتی راستوں سے اس دریا کی جو ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں اس سے رکا ہے. یہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے کہ جو قدرتی گزرگاہیں ہیں وہ ایل بی او ڈی یعنی قدرتی گزرگاہیں جو سندھ ڈیلٹا کی ہیں وہ شمال جنوب کے رخ میں بہ رہی ہیں. لیکن جو ایل بی او ڈی ہے وہ تقریباً مشرق مغرب ہے اور ان تمام راستوں کو روک رہی ہے. جو قدرتی راستہ سب سے بڑا تھا اس علاقے کا وہ پران ڈھورو تھا. یہ دریائے سندھ کی ایک شاخ تھی جو تقریباً 800 گز چوتھی, اور اس سے کافی پانی جو تھا وہ سمندر کے اندر جاتا تھا. اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میر پور خاص مین ڈرین بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے پانی علاقے کا پران ڈھورو میں جمع نہیں ہوتا, اور جب جمع نہیں ہوتا تو پھر وہ رکاوٹیں ٹوٹتی ہیں اور جہاں دریا کا جہاں بھی پانی بنتا ہے وہ پانی ادھر جاتا ہے, پھر آگے کوئی اور رکاوٹ ہو جاتی ہے وہ وہاں جمع ہو جاتا ہے. میں بدین میں تفصیلی میں نے دورہ کیا ہے اور بدین سے آگے جو میر پور خاص ڈسٹرکٹ کا شہر ہے جھڈو, وہاں کی بھی صورتحال دیکھی ہے. سڑکیں خشک ہیں لیکن سڑکوں کے دونوں طرف پانی ہے. جو کھیت اونچے ہیں ان کے اندر فصل بچ گئی ہے, لیکن جو کھیت نیچے ہیں ان کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے, اور اس میں نہ صرف یہ کہ موجودہ فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے بلکہ آئندہ وہ جو گندم بونے کا وقت ہے اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ پانی سوکھے گا. اور یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. جو جھڈو کا بائی پاس ہے, جس وقت ہم بدین سے جھڈو جاتے ہیں تو وہاں پہ مطلب کوئی 6 یا 7 کلومیٹر تک سڑک کے ایک طرف جو متاثرین ہیں وہ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سڑک آگے روشن آباد جاتی ہے اور روشن آباد سے آگے وہ ایل بی او ڈی ہے جو کہ بہ رہی ہے.
LBOD का जो पुल है नौकोट के रास्ते में रोशनाबाद से आगे, कल जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पुल के ऊपर कोई 2 फीट पानी जो था वो बह रहा था। लोग पैदल क्रॉस कर रहे थे पुल को, लेकिन गाड़ियां नहीं जा सकती थी, तो मुझे रोशनाबाद से वापस आना पड़ा। जो हल है वो इसका सीधा साधा है, वो ये है उसूली तौर पे कि जो कुदरती गुजरगाहें हैं पानी की उनको बहाल किया जाए और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। सिंध असेंबली ने 2012 के अंदर एक कानून पास किया था जिसमें यह था कि जो भी कुदरती रास्तों को घेर रहे हैं उनको जेल की भी सजा थी, फाइन की भी सजा थी। 2-3 साल वो ऐसे गुजरे कि जिसमें लोगों ने खुद साफ करनी थी, लेकिन फिर ये कुदरती गुजरगाहों के अंदर चीजें आई हैं। बड़ी बात यह है कि LBOD को कैसे संभाला जाए, और उसके लिए एक पूरी प्लान थी। 52 अरब रुपए उसका खर्चा था। वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम इसको कहते थे, और उसमें तजवीज़ ये की गई थी कि कोई 7 के करीब साइफन बनाए जाएं जो कुदरती रास्तों का जो पानी है उस साइफन के जरिए LBOD के नीचे से वो निकल के और आगे जा सके। मुझे ये प्रोजेक्ट दी गई थी और उसको फॉलो अप मैं कर रहा था। वर्ल्ड बैंक से डॉक्टर निकोलस आए हुए थे, और डॉक्टर निकोलस जो थे वो बहुत ज़हीन आदमी थे, ब्राज़ील के थे, और उन्होंने इस पर बहुत काम किया था। हमने एक साइफन बनाया जुड्डो के करीब सरफराज ढोरों पे, और उससे हरचंद के अब उस साइफन के रास्ते में भी रुकावटें आ गई, लेकिन ये कि वो साइफन जो था वो काम कर रहा था। और हमसे मरकजी हुकूमत ने ये कहा था कि जितने वसाइल आप खर्च करेंगे वो हम आपको दे देंगे और हमारा भी बराबर का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन जितने वसाइल हमने खर्च किए थे सरफराज ढोरों का साइफन बनाने में वो नहीं मिले, और इस वजह से ये प्रोजेक्ट वसाइल का कमी का शिकार हो के ये रुक गई। और अब इसको कैसे चलाया जाए वो जो है वो देखने की बात है, क्योंकि जब तक कि ये बुनियादी वजह दूर नहीं की जाएगी उस वक्त तक मेरे ख्याल से जब भी बारिश होगी या जब भी दरिया का सैलाब आएगा तो ये मसाइल होते रहेंगे। अब इसके लिए रास्ता निकालना है। मैं अपनी हुकूमत को तजवीज़ यही दे रहा हूँ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है चाइना का, उससे मदद ली जाए, और उनके बहुत ही तकरीबन नील इंटरेस्ट रेट पे वो होता है, और उन्हीं की मदद से और उन्हीं की मशवरे से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। शायद इसी किस्म की, क्योंकि मैं मेहर और खैरपुर नाथन शाह वगैरह या मंचर पे इस वक्त खुद मैंने नहीं देखा है, इसलिए पूरे तौर पे मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन शायद वहाँ भी जो फ्लड प्रोटेक्शन बंद रास्ते रोक रहा है तो उसका यही कुछ बन सकता है कि प्रोटेक्शन बंद के नीचे से या कोई बाईपास वगैरह बना के इस पानी को जो है वो दरिया तक पहुंचाया जाए। फ्लड प्रोटेक्शन बंद के साथ एक और मसला है। एक हमारी 88 की गवर्नमेंट में चीनी टीम आई थी जिसने मंचर पे काम किया था। मंचर क्या, वो जो एक नाय आ रही है ऊपर से उस पूरे इलाके पे, और उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो बलूचिस्तान से पानी आता है, और बलूचिस्तान से क्या अफगानिस्तान और ईरान तक से बलूचिस्तान के रास्ते से होके आता है, ये अपने साथ सिल्ट लाता है, और ये सिल्ट बंद के साथ साथ वो जमा होती जाती है, और हर साल कोई 8 से 10 इंच सिल्ट जमा हो जाती है। तो इसलिए जो इफेक्टिव हाइट है बंद की वो कम हो जाती है उस सिल्ट के हिसाब से। अब हम लोग ये करते हैं कि हर साल वो बंद की हाइट जो है वो बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। ये मुसलसल आप हर साल जब भी पानी आए सिल्ट जमा हो तो आप बंद की हाइट बढ़ा दें, ये नहीं है सिलसिला। ये कोई समझिए कि मुकम्मल हल नहीं है। मुकम्मल हल यही है कि जो कुदरती रास्ते जिनसे होके पानी दरिया सिंध में जाता था, पहाड़ों पे जो पानी गिर रहा है कीर्तगंज पे, और जो आ रहा है
बलूचिस्तान से, उनको फिर से एक्टिवेट किया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये सोचने की हैं। दूसरी ये कि ये जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, खैर अब तो ये मैंने जो मैसेजेस भेजे हैं यहाँ से, वो मैं अब थर डेजर्ट नहीं कहता, थर फॉरेस्ट कहता हूँ, क्योंकि ये मेहरबानी हुई है और यहाँ पे बिल्कुल एक बिल्कुल फॉरेस्ट है, ये नाकाबिले यकीन जो है सूरत हाल है यहाँ पे हरियाली की। और उसकी वजह से शायद पहले जो बहरे अरब से उठने वाले बादल थे, जो कि मुड़ जाते थे मकरान के साहिल से होते हुए खलीज की तरफ, और वहां तक उनका जो टूट जाता था, अब उसी थर की तरफ आते। इस दफा भी आपको ने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बारिश थर के अंदर हुई है। तो ये एक चलता है कि मुझे अब ये ड्राउट या इस किस्म की चीजें यहाँ पे होंगी, बल्कि पूरा जो इंडस डेल्टा है उसके अंदर डेल्टा होती है तो उसका लोग रास्ते उनको लिया जाए। दूसरी ये कि लोग किस तरीके से यहाँ पे रहे। मैंने बंगाल देखा है और बहुत से दूसरे दोस्तों ने भी बंगाल देखा है। वह हैं, उन्हीं में से पानी जाता है और जमीन के दरियाओं को ड्रेज करके भी जमीन की जाती है, उसको जाता है। इस वक्त जो इमदाद दी है उसकी नौयत बहुत आर्जी है। असल चीज़ ये है कि लोगों को उनके पैरों पे खड़े होने के लिए एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं वो बनाई हैं कि लोगों की बॉडी से फिर लगे। और इमदाद का जो सिलसिला है, हरचंद के एनजीओज बहुत आगे आए हैं। ये जो झुड्डों पे हमारे मुतासरीन पड़े हुए हैं, तो उनको एनजीओ का अफरत कर रहे हैं। बहुत से नौकोट पे भी यही सूरत हाल है। कल सुबह में जहाँ एमडी की ब्रीच हुई थी, वहां भी आज जो मुझे ब्रीफिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है वो ये है कि एनजीओज जो है वहां पे मुतासरीन को खाना फराहम कर। लेकिन एक जो और बड़ी मुश्किल है वो ये है कि बीमारियां फूट पड़े, ये सूरत हाल हो सकती है। कल मैं सेनेटर डॉक्टर खालिदा महेंद्रो के साथ और डॉक्टर महेंद्रो की वो पूरी गाड़ी उनकी जो थी वो दवाओं से भरी हुई थी, और वो जहां जहां भी कैंप्स थे वहां रुक के और मरीजों को देखती जा रही थी और दवा मिल रही थी। बुरा हाल है वो ये है कि स्किन डिसीजेस तो बहुत प्रेवलेंट थी वहां पे। मलेरिया के केसेस थे, डायरिया के केसेस थे, और डॉक्टर साहिबा का ख्याल था कि ये एपिडेमिक बहुत जल्द इख्तियार कर सकते हैं। खैर इसके लिए कोई तिब्बी माहिर होना जरूरी नहीं था, वो मुझे सामने से नजर आ रहा था जिस तरीके से केस सामने आ रहे थे। अब हुकूमत के पास डॉक्टर भी हैं, हुकूमत के पास दवाएं भी। कल शाम वहां पे बदीन में हमने एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को बिठा और उनकी एक पूरा निज़ाम बनाया कि किस तरीके से उन एम्बुलेंसेस जो हैं वो हर कैंप में जाती रहेंगी डॉक्टरों के साथ, और मॉनिटरिंग ऊपर से के अंदर एक फोकल पर्सन रखेंगे, वो कर रहे हैं आज सुबह से कि जो बताता रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी ये हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त आईडीपीस के कैंप, उनमें जो बीमारों का इलाज है शायद उसकी ज्यादा अहमियत है बजाय, मतलब ग़िज़ा तो ज़ाहिर है फराहम हो ही रही है, हुकूमत भी कुछ कर रही है, एनजीओज भी, लेकिन इस पहलू से गफलत करना मेरे ख्याल से उसके बाद
रिजल्ट हो सके। और आपके फोरम का सहारा लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरी कोशिश करें, और जो भी यहाँ पे पीएमए से भी कल राब्ता हुआ है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी अपना प्रोग्राम बना रही है कि किस तरीके से इन बीमारियों का इलाज किया जाए और लोगों की सेहत का ख्याल किया जाए। दूसरी जो एक बात है वो ये है कि इस वक्त इमदाद महंगाई की वजह से वो बहुत ही महंगी होती जा रही है, उस पर खर्चा बहुत आ रहा है। यानी मैं शहीद जुल्फ़िकार अली फाउंडेशन का बोर्ड मेंबर हूँ, सलीम मांडवीवाला भी हैं, और हमने और ये कहा कि अच्छा साहब हम ये थैले बना के लोगों को राशन के हम पहुंचाएं। तो एक थैला जिसके अंदर 7 से 8 दिन की राशन एक फैमिली का है, उसकी कॉस्ट 4,300 रुपये आ रही है। यानी हमने 1000 बैग्स लाड़काना भेजे और 1000 बैग्स 4 दिन पहले मैं लसबेला के इलाके में गया था डिस्ट्रीब्यूट करने। अब सिर्फ समझिए कि 2000 खानदानों को हफ्ते भर का राशन देने की कॉस्ट फाउंडेशन को कोई 84 लाख के करीब आई है। अब और वो दोस्त जो कि हमेशा ये बनाया करते थे रिलीफ गुड्स वगैरह, उन्होंने मुझे यही कहा कि ताज भाई, जब मैंने कहा कि भाई ये इतनी ज्यादा कैसे हो गई, उन्होंने कहा कि ताज भाई 2 साल पहले यही थैला 1500-1600 में बन जाता। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर हमें मजीद कोशिश करने की ज़रूरत है कि कम से कम जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो अपने घर छोड़ के हटे हैं, तो उनको राशन जो है वो मिलता रहे। जो कुक फूड दे रहे हैं, पक्का पकाया खाना एनजीओ जो दे रहे हैं, उसकी जाहिर है कि बहुत आती है। इस चीज़ को भी देखना है कि कम से कम अखराजात में हम ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मुतासरीन हैं उन तक ये पहुंचा सकें कि कम से कम पेट भरने की 2 वक्त रोटी उन्हें मिले। जाहिर है कि हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हुकूमत को बहुत सारे मतलब एक कसीर रकम इसके लिए खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ अगर ये हो जाता है कि जिस तरीके से हमारे एनजीओ आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर है एनजीओ भी अपने आम शहरियों से मदद लेके और वो सरमाया फराहम करते हैं, तो जी हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जब तक हम एक तवील मुद्दत के एक बाकायदा मंसूबे के ज़रिए जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनको हल नहीं करते, और आवाम के रोज़गार को बहाल करने के लिए और आवाम की आमदनियों को बढ़ाने के लिए मेहनत कशों, अगर हम एक पूरी मंसूबाबंदी के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर प्लान का रुख आवाम की तरफ होना चाहिए कि सिर्फ वो मंसूबा की जाए, बंदी की जाए कि जिससे आवाम की हालात बेहतर होते हैं। क्योंकि गुर्बत ने जिस तरीके से अपने पर फैलाए हैं, तो मैंने बल्कि अपनी सेनेट में जो बजट सेशन के तकरीर में कहा था वो ये कि अगर हमने मुल्क से आइंदा 5 साल 4 साल के अंदर गुर्बत को ख़त्म नहीं किया तो हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा जो पूरा निज़ाम अब खतरे में होगा और मुल्क इंतशार के अंदर चला जाएगा। और इंतशार के अंदर जब मुल्क जाता है तो जाहिर है कि इंतहा पसंद ताकतें, क्योंकि वो ज़्यादा मुनज़्ज़म होती हैं, वो मुल्क को संभालती हैं और मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में पड़ता है। शुक्रिया बहुत बहुत।